هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلى الله على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال
فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من مخافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد محمد. أبا عبد الله الحسين مظلوم شهيد بكربلاء بواد بلند سلام. बस ये रज़ा पढ़ने की शुरू स्टार्ट 50 में खत्म कर देंगे। हमारे दीगर सलवात एक बार फिर सलवात भेजें। मेरी आंखों में जो अश्कों की झड़ी है लोगों, मेरी आंखों में जो अश्कों की झड़ी है लोगों, ग़म शबीर की दौलत ये बड़ी है लोगों, ग़म शबीर की दौलत ये बड़ी है लोगों, मेरी आंखों में लाशे अब्बास पे ज़ैनब खुले सर आई है, लाशे अब्बास पे ज़ैनब खुले सर आई है, मुँह छुपा लो कि कयामत की घड़ी है लोगों, मुँह छुपा लो कि कयामत की घड़ी है लोगों, सुर्खरू हो गई तरबियत आगोश रबाब, सुर्खरू हो गई तरबियत आगोश रबाब, मौत से आँख जो असगर की लड़ी है लोगों, मौत से आँख जो असगर की लड़ी है लोगों, सीना अकबर का
जो बरछी से हुआ है जख्मी, सीना अकबर का जो बरछी से हुआ है जख्मी, चोट लैला के कलेजे पे लगी है लोगों, चोट लैला के कलेजे पे लगी है लोगों। लाशे असगर पे सकीना का संभलना मुश्किल, लाशे असगर पे सकीना का संभलना मुश्किल, तीर की नोक तो गर्दन में अड़ी है लोगों, तीर की नोक तो गर्दन में अड़ी है लोगों। ये कुछ मैंने कोशिश की है कुछ अशआर लिखने की, मौला से कबूल करें। टुकड़े दिल हो गया गठड़ी को जो देखा माने, टुकड़े दिल हो गया गठड़ी को जो देखा माने, लाश कासिम की जो पामाल हुई है लोगों, लाश कासिम की जो पामाल हुई है लोगों, थाम कर दिल को ज़ैनब ने किया सजदाए शुक्र, थाम कर दिल को ज़ैनब ने किया सजदाए शुक्र, दोनों बेटों ने जो पाई है शहादत लोगों, दोनों बेटों ने जो पाई है शहादत लोगों, करबला हो गई आबाद हुआ कत्ल हुसैन, करबला हो गई आबाद हुआ कत्ल हुसैन, याद भी आज रज़ा हम को रुलाती लोगों, याद भी आज रज़ा हम को रुलाती लोगों, मेरी आंखों में जो अश्कों की झड़ी है लोगों, गम शबीर की दौलत ये बड़ी है लोगों, मेरी आंखों में सलवार।
मुमिनीन बावाज़ बुलंद सलवात। ज़बां पर मदह बाग़े अली के नौनिहालों की, गुलिस्तान से नहीं का मंजलिस नाज़ुक ख़याल, गुलिस्तान से नहीं का मंजलिस नाज़ुक जगा जमोली शैने तो हातिफ ने कहा रो कर, यही बस्ती बसेगी ये फातिमा के नौनिहाल, यही बस्ती बसेगी फातिमा के नौनिहाल। बशर से क्या आज़ादारों के रुतबे का बयां होवे, हकीकत हश्र में खुल जाएगी इन रोने वालों, हकीकत हश्र में खुल जाएगी इन रोने वालों के। दरूद भेजो। रुख किया शैने सुए खबरे शहंशाह अनाम, बैरे तस्लीम झुके मुस्तकिले बाबे सलाम, अज़्न पढ़ के जो गए खब्र के नजदीक इमाम, अर्ज की आया है आज आखिरी रुखसत को, अर्ज की आया है आज आखिरी रुखसत को गुलाम, ये मकाम हमसे अब शाह ज़मान छूटता है, आज हजरत के नवासे से वतन छूटता है, आज हजरत के नवासे से वतन चैन से सुबह घरों में मुझे मिलता नहीं चैन, सख्त आफत में हूँ आपका ये नूरे ऐन, टुकड़े दिल होता है जब रो के हराम करते हैं बैन, नन्हे बच्चों को भला लेके किधर जाए, नन्हे बच्चों को भला लेके किधर जाए, शहर में चैना जंगल में अमा मिलती है, देखिए कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती है, देखिए कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती है। अब मेरे सर के लिए तेज हुए हैं खंजर, ऐले की शर पे कमर बांधे हैं बाखिर बशर, आपने दी थी इसी रोज किया माँ को खबर, वालिदा रोई थी 2 रोज तलक पीठ के सर, वालिदा रोई थी 2 रोज तलक पीठ के सर, इस नवासे को मगर भूल न जाना हजरत, ज़िबा के वक्त मदद करने को आना हजरत, ज़िबा के वक्त मदद करने को आना हजरत, ये बयां करके जो खबर से लिपटे सरवर, यूं ही ली खबर के थर्राई जरिए अनवर, आए तुर्बत से ये आवाज हबीबे दावर, तेरी गुर्बत के मैं सदके मेरे मजलूम पे सर, तेरी गुर्बत के मैं सदके मेरे मजलूम पे सर, कोई समझाना मेरे गोद के पाले
तुझको, हाय आधा ने मदीने से निकाला तुझको, हाय आधा ने मदीने से निकाला तुझको। ऐ मेरे गेसुओं वाले मेरे साबिर शबीर, मेरे बेकस मेरे मजलूम मुसाफिर शबीर, ना रहा कोई तेरा यावर नासर शबीर। हाय ऐ गोरे गरीबा के मुजाविर शबीर, हाय ऐ गोरे गरीबा के मुजाविर शबीर, तू जहाँ जाएगा प्यासे वहीं चलता हूँ मैं, खाक उड़ाता हुआ तुरबत से निकलता हूँ, खाक उड़ाता हुआ तुरबत से निकलता हूँ मैं। कई दिन से तेरी मादर को नई खबर में चैन आई थी शब को मेरे पास ये करती हुई बहन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सकलैन। सुबह को अपने वतन छोड़ के जाता है, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है उसे, कहने आयूं के मुँह खबर से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला न तो छोड़ूंगी, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। माँ की तुरबत पर गए शाये बशब, खादा उतरी मामूल से बसत आहो फुगा ज़ैनब-ओ-ज़ार, दौड़ कर खबर से लिपटे जो इमाम अबरार। हाँ ज़हरा के निकल आए, हाँ ज़हरा के लहद से निकल आए, आए आवाज ना रो दिल को खलल होता है, खबर हिलती है कलेजा मेरा शक होता है, खबर हिलती है कलेजा मेरा शक होता है। हाँ बुलाओ मेरा बासे दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चों पे मैं सदक़े उस पर, शिकमे गैर से वो है पर वो मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बिरादर को पुकारे सरवर, ये सदा सुन के बिरादर को पुकारे सरवर। अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मज़ार, आई ज़हरा की सदा मैं तेरे गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार। ध्यान भाई की हिफाजत करे, ध्यान भाई की हिफाजत करे, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा, मेरा शब्बीर। कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। आप लोगों से गुजारिश है कि वज़ू करें और अपने नमाज के लिए तैयारी करें।
मैंने अनाउंस कर दिया फिर वेट उम्मीद आप थोड़ा आगे छोटा सा पढ़ना बस तो अली हुसैन जो वो सलाम पेश कर रहे हैं आपसे लग रहा है मोहम्मद का आवाज़ बुलंद सलावत सिर्फ 4 ही करूँगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे परी के तारे ऐ चाँद जलवागर है हाशिम का चाँद यहाँ पर खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से ऐ चाँद इस ज़मीन पर क्यों हमेशा ठंडक सोते जो है यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे ऐ चाँद मारे गए यहीं पर बेदर्दियों सितम से ज़ैनब के दोनों प्यारे मुस्लिम के दोनों बेटे ऐ चाँद पहुँचाओ है करबला में नाचीज़ सिबते जाफर ऐ काश के मुकद्दर हमको ये दिन दिखाए ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे सलवात माशाअल्लाह I would request you to come forward a bit if you don't mind. It's good for the recital. I would request Maulana Fatih to come and listen to this section. Inshallah. या अबा साले फर्श अदा पर आ जाइए कि हुसैन मजलूम के गम के अय्याम आ गए। या अबा साले फर्श अदा पर आ जाइए कि हुसैन मजलूम के गम के अय्याम आ गए। पुरसा हुसैन मजलूम गरीब का कबूल फरमाइए कि प्यासों के अय्याम आ गए। इमाम सादिक फरमाते हैं हुसैन के गम में रुलाओ रोने वाली सूरत बनाओ कि बेमकना और चादर रसूल जादियों के दुख भरे अय्याम आ गए। अरे मोमिनो खुल के करो मातम और आजादारी नवहा और मर्शिया के ज़हरा के लाल के मजलूमी के अय्याम आ गए। पर अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंदर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. صلوات. This is, those who have recited Surah Yasin on regular occasions would appreciate that this is an ayat from Surah Yasin, ayat number 60 to 63. I'm first of all, before I go into the translation, I'm extremely humbled by being given the opportunity to recite the next 10 days of the first Ashra of Moharram in English, the English lectures. And it is certainly an opportunity for our community to also understand that there is a need to address our community's different age groups. And alhamdulillah, for some time this has been happening, and today, in this particular 10 days, I will take the honor of addressing that need. This platform is really a university for our communities to learn from, and it is a blessing. It's a blessing that for 10 days throughout one's life, every year, we are coming face to face with the educational circuit from this platform. And it is hoped that this platform would provide a learning process, both within the subjects that are selected and also the spirituality that it is meant to raise. One thing is very important to understand. This ayat, which I recited, will be the theme of our topic for the next 10 days. And the meaning will lead you, inshallah, to understand on the back of this particular ayat, the subjects of those who created Karbala and the subject of those who fought against the creators of Karbala. In others, the ayat says quite clearly when it's translated, it says, Alam ahad ilaykum ya bani Adama. Oh, children of Adam, did I not create a covenant with you? Alam ahad ilaykum ya bani Adama. An la ta'budu shaitan. That you will not worship the shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. He is the greatest of your enemies. Wa an abuduni hadha siratul mustaqim. And worship me, for I am the right passage. Hadha siratul mustaqim. Laqad adhillu minkum jibillan. He has misled many a people over this time. Afalam takunu taqilun. What? You do not understand that? This ayat is very important to understand how, when we use it in this present discussion that I want to really develop for our younger communities as it is, for the wider community at large, because it's important to understand that sometimes people think, oh, it's okay, when I become 25, 30, then I'll mend my ways. And in that, a lot of teachers of akhlaq say something very important to trainers of our next generation. They say, never say in front of your children, you know, when I was young, I used to do this, I used to do such and such a bad thing. So the listener, the child would say, well, if dad did that, uncle did that, grandfather did that when he was young. So inshallah, when I get to his age, I will mend my ways as well. So it's very important that you do not say that I did this. You're not hiding, you're not lying, but you're not giving the opportunity for the listener to think, well, if this old man did it in his youth, then I'll be all right if I can do it up to my youth age until I get to such an age. It's important to say to the children, don't do this. People have misled themselves. As the ayat says, that do you not see how Shaitan has misled people? And he has misled people, and you do not notice and you do not realize how he has misled you. And this is where it's important for our children particularly to understand, the youth of our community, or those particularly who are kind of developing their religious understanding, that it is not correct to leave it to a latter date to remedy yourselves. It is not correct because of the fact that, when our, a lot of people, when I was in Qom, some of these Iraqis who ran away from Iraq, they used to say, we were punished by Saddam because we did not recognize those people who were
amongst him who are also part of us. We didn't recognize that these people who are my uncles, my relatives, who were part of Saddam's forces, were in fact, they were part and parcel of the enemy. They were not my friends. They were not my family. But because they were blood families, I thought they were okay. So it's very important to understand, use these people, use these examples. I mean, our younger generation should use the examples of the older generation to understand how some of them have got misled in the community, how they have misled the community sometimes. There's a lovely saying from Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib. He says that if a community wants to develop, it should use the strength of its youth and the experience of its adults. Now that is very important to understand because both these categories have takabbur in them. Both of these categories have arrogance in them. Both of these categories think they're it. The youngster thinks because he's got all the energy, all the strength, he can move the world. He becomes arrogant in that. And says, what are you going to do? You old man, you don't have any strength, I'll do everything. Then the reverse coin, the reverse side of this hadith is that the experienced person becomes arrogant. He's saying, oh, these thick kids, what do they know? I know everything. And the takabbur sets in there. So the tradition says that if the society wants to develop in its full capacity, then it should use the strength of its youth and the experience of its adults. Then only will the society develop. And that's where we fall short because our youths are being taken away by other people who think you've got everything, you can be arrogant with everything. Your parents, who are they? They're old age pensioners, they're historical people, they don't know anything. And the adults think, well, our youngsters are being made evil by this community around us. What are we going to do? We have to do everything on our own. These two characteristics are dangerous. And that's why it's very important that the younger community who's here and also the older community who's sitting around, that we understand what is it that Allah subhanahu wa ta'ala is asking from this ayat. Right at the beginning, he says, Alam ahad ilaykum ya bani Adama. Did I not make a covenant with you, O children of Adam? This word ahad is very important in this ayat. The word ahad means agreement, covenant. It comes from the word ain ha dal, ahad, which means an agreement. Having something where in relation to an agreement, there's always a double party to it. You don't have an agreement with just one person. I make an agreement with myself. Yes, you can have that type of agreement. The New Year resolution, that's an agreement with yourself, that I will stop eating meat or I'll stop eating chocolates. But the real thing which this ayat is saying is Alam ahad ilaykum ya bani Adama. That the two parties are defined in this ayat. The two parties are defined in this ayat. The contract maker and he to whom the contract is given. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala is the contract maker. He's saying, have I not created a covenant with you? And with whom? With Adam's children. So Allah subhanahu wa ta'ala is making it quite clear that there is an ahad, there's an agreement. But then Allah subhanahu wa ta'ala, the important thing in that ahad is that if this ahad is broken, which we will talk about inshallah over the next 10 days, if this ahad is broken, if this agreement is broken, then the breaker is going to perish, will suffer. Because the ayat says about the fact that if you break this ahad, if you break this agreement, the only time you will break this agreement is when you align yourself with the shaitan. When you align yourself with the shaitanic activities, then you will break this ahad, because the first level of the ahad is with the creator. The creator is whom you are having the ahad, and the only person who guides us to break that covenant is shaitan. Is shaitan. In other words, throughout these 10 days of discussion, we will look at how this ahad is maintained and what levels you can reach. And this is the levels I want to bring our younger generation to realize. And that is, you don't have to wait to start achieving those levels when you become baligh. You don't have to start achieving those levels of spirituality when you start, when salat becomes wajib. Because if your trainers are committed dini people, then they will get you to start doing religious things before your bulugh. In other words, you don't tell a child you will not lie once you become baligh.
You do not tell the child, you will not steal once you become baligh. So why do we not train the child to start his salat before bulugh starts? These are the important things. Start the child, if it's a daughter, that she starts wearing hijab at an age prior to her bulugh. If it's a boy, and both the boys and girls, make them realize or let them appreciate how it is good to pray before they become baligh. And particularly if you're praying, the child plays all day. But at the time of salat, you bring the child together with you and standing with you when you pray. So that becomes an accustomed procedure in the system of the child. Remember, the child is not somebody who's going to be acting what you're saying. Initially, the child is going to be recording what you're saying, recording what you're doing. Later on, he will put into play what he's recorded. But if, for example, I've given an example before, like if somebody comes to the door and you tell Muhammad, tell Falani who's at the door that I'm not in. What has that child recorded at that time? Dad can lie. So I can lie as well. Would you like it when he goes to the door and says, Agha Sahab, Baba said he's sitting in the sitting room, but Baba said he's not in. The moment he comes in, you're going to give him a big slap around his ear. Did I tell you not to tell him I'm home? Why did you tell him I'm home? Because the child is tuned from Allah subhanahu wa ta'ala to tell the truth. You're teaching him to lie. The child is accustomed through Allah's training or a creation that you are لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ, that the child even at birth time is the best of all the creations that God has created. Not when he becomes baligh, so that's why it's so important that our younger generation really and truly start asking their mom and dads, what should I be doing other than just playing around? At least get the children to exercise and experience the whole process. And particularly when you're looking at the generations that we're talking about in our community. MashaAllah, we've got almost age-wise 4 or 5 different generations in our community. You've got the 60s and above. May Allah subhanahu wa ta'ala keep them alive and safe. That includes me. You'll be surprised. And then you've got those who are from 40 to 60s. Then you've got those from 20 to 40s. Then you've got those from bulugh to 20. And then you've got the children. 5 generations of community in us. In reality, of course, generations in sociological terms is about 30 years. But community-wise, when you're talking about the groups that we have who have different necessities in their religious doctrines, then it's important that both the older generations also appreciate how important it is to allow the younger generation to also experience the deen. Particularly our older generations who come from India and Pakistan, they were born hearing the adhan in their ears. The only thing we have, the things our children are sometimes born hearing in their ears are, if unfortunately some household allow all sorts of satellites to come into the house, that the first things they hear in the morning are the top music songs in our communities at the moment. That's an unfortunate situation. We have to save our children from that situation. So, important thing to understand, because inshallah we will endeavor throughout these days to keep to the time, and we have very little comparative time in Urdu and English lectures, so then the rest of the Majlis can develop in its rightful manner. What is important to understand, that this set of ayat that I've selected, which inshallah I will develop and we will let our children understand, that this ayat allows us to look at those things which are Sirat al-Mustaqim and those things which are shaitanic activities. So every day, inshallah, we will look at certain aspects of good deeds and bad deeds, which we have to allow our children to experience for themselves. And not just our children, our adults as well, to experience for themselves. Because certainly sometimes we set ourselves on the border of potential guna and possible reward. We just sit ourselves and say, well, I'm guna to nahi karo at least. I'm not doing a guna. Like sometimes I used to have friends in college. They would say, yeah, we go down to the union's bar, but we don't drink. Just sitting on the borderline. Yeah, we don't drink. What do? We have lemonade, orange juice.
Yeah, mashallah, the barber person is going to wash your glass, which he serves somebody else with, specifically for you to have lemonade or orange juice. These are the experiences that we have to alert our next generation to realize, that you don't have to be on the borderline. You can be well below the borderline and be practicing Muslims. You don't have to feel embarrassed to carry your deen. I knew a guy who used to speak from this mimbar, and he used to say, I don't wear my deen on my cuff, on my handcuffs. You don't have to display your deen all the time. You know, what you have to do is your practices, as the saying says, you know, you don't have to say, you just demonstrate with your actions. If your actions are such that they are purely humane and deeny and religious, the person looking at you would say, yeah, I know this guy, Muhammad, he practices like this, he does this or this, he does that, which is positive in his life. So you see, what's important, and this is where, inshallah, we will go on probably tomorrow as well on this discussion, is that when I said that this agreement, and the children have to understand, yeah, you have already got an agreement with God. It's not, as I said to you, that your agreement comes into play when you're 15, 16. No, God has already given you an agreement, and that is, you will survive, or you will have a life. If you give it a good religious backing, you will become better than what others are. If you don't give it a religious backing, then you will be like everybody else, but you will deteriorate in your character and in your abilities to demonstrate your religiousness. And that's why it's so important that we have the full support from the parents of our 14-year-olds, from the parents of our 18-year-olds, from our parents for our 10-year-olds, that they're given full support of knowing that their religious life is Islam, and not Islam is just a practice outside their life. No, Deen is your life. You can't say my life is something else and my practice is, and this is what the world wants you to do. You want to practice your religion, keep it in your house. Why do you want to demonstrate it outside? No, I want to show my Deen. I want to show that I'm a Muslim. Why should I just keep it locked up in the house? I want to show people, you know, there was a friend of mine, which is important for our children to understand as well. There's a friend of mine. He went to try and sort out a big business deal with some bankers. And this was at the time when Imam Khomeini gave his fatwa against Rushdie. So immediately whilst the meeting was taking place, these bankers suddenly asked him, what do you think about Khomeini? Obviously they have no respect for, this is the other thing. We have to teach our children to realize that Ayatollah is not a insulting word to use. You can't say Sistani, Khomeini, Khamenei. No, you have to say Ayatollah Uluzma or Ayatollah Khamenei. You don't say to someone who's a doctor, Mr. Johnson, come here. You say, Miss Dr. Johnson or Mr. Johnson. When you can say that to an ordinary person, can't you say Ayatollah to a learned person who spent all his life in his deen? And you say, Sistani ne yeka, Khamenei ne yeka. What is all that? It's a deep insult to a person who spent his life acquiring an attribute for his work. So you've got to learn that the way you call someone, he should be called with the credentials and the characteristics that he possesses. Like the children, they can't call their father Asghar, come here, they say Baba or Abu. They don't say Asghar because that status of Abu is a status of respect for the father. In the same manner, the Maraji of our time are the status of respect for the Shiite community. It's not right to call those people who are the izzat and the respect of the community with just a straightforward Khamenei, Sistani, Khomeini statement. No, respect it and call it Ayatollah or Ayatollah al-Uzma and recognize their status. Salawat. So this friend of mine, he was in that with the bankers, about 3-4 bankers, and they said, well, what do you think about Khomeini's ruling? He said, he's my religious guide, I respect him, and he has the responsibility to give a ruling to the community. Then after that, he said, okay, can I have then the time came, he said, can I have a break for me to go and do my salat? He went, when they came back, they just packed up the bags and they left saying, sorry, we can't do business with you. Just because he defended the Marja Taqleed.
He said to me, if I pulled off that deal, I would have made several million pounds. But within a few days, I got another deal, which gave me even more several million pounds than the one I would have made off that one deal. This is the barakat in defending haqq. We have to teach our children to defend haqq. You got to learn to defend your right to be what you are, not the right to defend others to criticize you. That is wrong. You should not leave the doors open to be criticized by yourselves and others. When your deen is so important, so great, so big, you have the responsibility to be as big as it to defend it. Don't make yourself small. Don't make yourself, as they say in French, petite. Make yourself big in your understanding of your religion. Make yourself big in practicing what is the definition of the religion. Salawat. So at this point, just a few more minutes left of my time. At this point, you got to understand one important thing, that Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam ahad ilaykum ya bani Adam. Remember, we have made a covenant with you, O children of Adam. Where does this covenant come from? How do we understand? Where is this covenant? The most important thing we have, which creates this covenant, this agreement between Allah subhanahu wa ta'ala and us human beings. What do you think the covenant is with Allah? What is that which will be the contract with Allah? Yes, you. Any of you. Kind of like live your life and opportunity. Okay, live your life and opportunity. That is the action. Where does a contract come from? The contract is the Quran. The contract is the Quran. It says in the second surah of the Quran, it says, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Rayba Fihi Hudan lil Muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, you make a contract with me, you will be the people of those who have been guided. You break my contract, you will not be the people who will be guided. But who do we have who will uphold that contract for us, so that we can see them as the example to apply that contract? And we have a hadith from the Holy Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, where he says about Imam Hussein, Mizbatul Huda, that Imam Hussein is the light of guidance. So we can see the Quran saying, I am the book of guidance, and then the Imams are saying, we will be the tools and lights of your guidance. If you maintain that relationship of hidayah that you need to have for your religion. And that's why when the hadith from the Holy Prophet called Imam Hussein Mizbatul Hidayah, and also then the Safinatul Nijad, it's saying you look at him as the light of hidayah, so then when you're sinking, you have the ship to protect you from drowning against your activities. This is where we have to realize, where if we follow the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, and that guidance is purely on understanding the relevance of the Quran, which inshallah tomorrow we will talk a little bit more over that. But if you recognize the Quran as that guiding book, as that you could say the book of laws, because it's laws where the hidayah, it's the laws which create the covenant. Because you can't have a covenant without anything written on a piece of paper and say, hey, you sign this. You look at it and says, there's nothing there. What do you want me to sign? So then God says, okay, sign this. This is the Quran. You've been given life on the back of this Quran. You sign it as endorsing that this Quran has given you life. If you recognize that as being the tool of hidayah, and that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, as I said in the first ayat, first and second ayats of Surah Baqarah, Alif Lam Mim Zal Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Rayba Fihi Hudan lil Muttaqin Alladhina Yu'minuna bil Ghaib. And it is for those people who have the yaqeen about the ghaib. All our children, whether they be just their ability to have something to think about, or those who've gone to 60 years, 80 years, they have yaqeen in the ghaib of our Imam of our time. If they lack that yaqeen of the ghaib in that sense, then for sure they have lost their track and they have been guided by the shaitan. But this is what we have to develop, inshallah, over the next 10 days of our conversation. That we create that relationship, that covenant is remembered, and how that covenant has come into our existence. And if we unfortunately abandon that covenant,
what are the consequences? And this is where, inshallah, we will be able to understand that, inshallah, tomorrow we'll develop this further in the sense of understanding when this covenant is broken. Because if our children see for themselves how this covenant can be broken, and then when they see in the community people who are breaking the covenants, then they will understand that the strength of the youth is not being used properly, and the experience of the adults has always been a waste of time. And last and final thing, you have to understand that your names are the backbone of your belief. It's no use calling Muhammad Mo or Fatima Fatih, because these are not names of our Aim-e Masoomeen. What is important to remember is your name is your religion, and it is your name that the enemies of Islam use to insult your religion as well. How? Because if they have a Muhammad who is found drunk dead in the street, they will say Muhammad was found drunk in the street to insult your religion. They will not say a person was found dead in the street, like they do when it comes to anybody else who is other than Muhammad or Hussein or Fatima found dead in the street for any un-Islamic activities. So it's very important that you respect your names and you respect the meanings of those names as far as your life is concerned. And I pray that, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala gives us the opportunity to develop these discussions. And please do not hesitate. If in the middle of my conversation, sometimes you feel that there is something out of place, I'm welcome to any type of query on my conversations afterwards, so then we don't disrupt the format of the program. But certainly I hope, inshallah, that our conversation over the next few days will both make you realize what Imam Hussein did to be that example. Imam Hussein alayhi salam, salawat. Be the example of he who has upheld the covenant with Allah subhanahu wa ta'ala. And you will see, inshallah, the things which enabled others to join Imam Hussein because they wanted to uphold the covenant of Allah subhanahu wa ta'ala. And what happened to those who did not uphold the covenant of Allah subhanahu wa ta'ala and how they perished. I pray that, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala keeps us on the right path, protects us from shaitan, and keeps us ready for the appearance of our 12th Imam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulla waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'i, في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Salawat again, please. Thank you very much, Maulana Taqi Razvi. Before I request Maulana Hassan Abbas to start, as usual, the request from all the members of the Idara-e-Jaaferiya that we run on your funds. There's no sort of a self-funding system here. So whatever goes on here, repairs and everything, it's from your donations and your funding to us. And we are in need, that's the time, Moharram is the time when you all come here and we can request you. We shouldn't be, but unfortunately we have to. So we got some work going on. Toilets have been updated. Kitchen has been refurbished and we got new cookers and everything on there. Tiles have been put on the stairs. Other works are going on. If you'd like to contribute towards it, the brother Amir is sitting in the front table. You can pay him on his card machine. Online, we got a link. You can go through the link and put up the money you want to put through, and then put a note for which sort of scheme you want to put into. So we request you that please do donate. If you don't donate, the Dara doesn't run. So if you want to come and enjoy the ambience of this mosque, you need to contribute towards it. And I don't have to explain much. It doesn't run by itself. So that we haven't got any sort of a business going on here. It's a charity fund. So I would rather request you again to please dig deep into your pockets and contribute towards it. Faka Shikni, as usual, on Ashura. Would you like to contribute towards it in the name of your deceased or anyone in your family?
funds, you can go and contribute at the front table. Become a member of the Idara. That's one way of getting some money in and running the show. Again, Moharram Fund is open. You can fund donation in any of the charity or the programs we are doing here, the works. So please, please, please donate generously and let the show run. I would request, without further ado, Maulana Hassan Abbas to start his lecture. Salawat. राजमते अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन मज़लूम शहीद में करबला बावाज़ बुलंद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها يفسد فيها من يفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, आगाज़ सुखन में सबसे पहले मैं खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद मुताल ने हमें फर्श अज़ा बिछाने की तौफीक अता फरमाई और बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ खुदावंद मुताल तूने हमें ख़ानदान इतरत अहले बैत अलैहिस्सलाम के वफ़ादारों में पैदा किया, हमें मौत भी इस ख़ानदान की वफ़ादारी में आए, इस ख़ानदान की विलायत पर आए। जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया इस सूरह बकरा की आयत नंबर 30 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, याद करो इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, उस वक्त को याद करो जो अल्लाह ताला ने मलाइका से कहा इन्नी जाइलुम फिल अर्द खलीफा, कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, अल्लाह ताला से भी मलाइका ने कहा कि खुदा तो उनको बनाएगा अपना खलीफा जो खून रेजी करेंगे, जो फसाद मचाएंगे। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अज़ान मोहतरम, खुदावंद मुताल का शुक्र इस बात पर हमें अदा करना चाहिए कि खुदावंद मुताल ने हमें वजूद बख्शा, क्योंकि वजूद खुदावंद मुताल की वो नेमत है कि सारी नेमत इस वजूद के बाद हैं। जो आज वजूद नहीं रखता वो फिर खुदा की किसी नेमत से फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसके लिए सूरज बेमाना है, उसके लिए चांद बेमाना है, उसके लिए फ़िज़ा बेमाना है, उसके लिए हर चीज़ जो है बेमाना है, क्योंकि वजूद ही नहीं रखता। लिहाजा हमें इब्तदाई में खुदावंद मुताल का इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावंद मुताल ने हमें वजूद बख्शा। उसकी बहुत ज़्यादा नेमतें हैं। खुदा ने हमें वजूद बख्शा और न सिर्फ खुदावंद मुताल ने हमें वजूद बख्शा, वजूद के साथ साथ खुदा ने हमें इंसानियत बख्शी। खुदा ने हमें इंसान बनाया, खुदा ने हमें पत्थर नहीं बनाया, खुदा ने हमें दरख्त नहीं बनाया, खुदा ने हमें हैवान नहीं बनाया, खुदा ने हमें मिट्टी नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने हमें वजूद भी बख्शा। उस वजूद में भी खुदा ने हमें इंसान बनाया। अगर खुदा हमें पत्थर बना देता तो हम क्या करते? खुदा हमें जमीन बना देता तो हम क्या करते? खुदावंद मुताल हमें एक दरख्त बना देता तो हम क्या करते? खुदा हमें एक पत्ता बना देता तो हम क्या करते? एक दरख्त की जड़ बना देता तो हम क्या करते? ये लुत्फ इनायत है खुदावंद मुताल का
कि खुदावंद मुताल ने हमें वजूद दिया, और न सिर्फ वजूद दिया बल्कि वजूद के साथ साथ खुदा ने हमें वो वजूद दिया जो जमादात से भी बेहतर वजूद है, जो नबातात से भी बेहतर वजूद है, जो हैवानात से बेहतर वजूद है, यानी वजूद इंसान दिया, इंसानी वजूद हमें अता फरमाया। और नासिबान मोहतरम, क्या नेमत इलाही यहाँ इख्तिताम कर गई? नहीं, खुदा ने बहुतों को इंसान बनाया, लेकिन वो इंसान तो बने लेकिन उनको हयात न मिली। वो इस दुनिया में मौत के साथ पैदा हुए, उनकी विलादती मर्द के साथ थी, विलादती डेथ के साथ थी। जब वो इस दुनिया में आए वो हई नहीं थे। तो खुदा का तीसरा जो लुत्फ है, वजूद के बाद इंसान बनाया, इंसान के बाद खुदा ने हमें हयात बख्शी। अगर वो हयात ना देता तो फिर क्या होता? इंसान होते भी क्या फायदा था? अल्लाह ने वजूद दिया, वजूद के बाद इंसान बनाया, इंसान के बाद हयात की, फिर हयात भी खुदा ने बहुतों को दी है, लेकिन खुदा ने हमें सही और सालिम अता किया, हमें सेहत और सलामती अता की। दुनिया में कितनी विलादतें होती हैं जो वजूद भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, लेकिन आंखों से जो अंधे होते हैं, कान से वो बहरे होते हैं, टांगों से वो लंगड़े होते हैं, जबान से वो गूंगे होते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र करना चाहिए, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हमारी जबान काम कर रही है, हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चीजों के उठाने की कुदरत रखते हैं। खुदा बंदे मुताल का लुत्फ इनायत है। लेकिन खुदा की इनायत यहाँ पर भी नहीं रुकी। खुदा ने बहुतों को जिस्म दिया है, बहुतों को सेहत दी है, बहुतों को सलामती दी है। खुदा बंदे मुताल ने बहुतों को आंखें दी हैं, बहुतों को खुदा बंदे मुताल ने हाथ दिए, लेकिन खुदा ने उन्हें शऊर नहीं दिया, अक्ल नहीं दी। वो मैड पैदा होते हैं, रिटायर्ड पैदा होते हैं, मेंटल तौर पे रिटायर्ड होते हैं। खुदा बंदे मुताल ने हमें दीवाना नहीं बनाया, खुदा बंदे मुताल ने हमें शऊर अता किया, फिक्र अता की, अक्ल अता की, जानने और परखने का मौका हमें दिया। तो कहाँ तक खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा तूने वजूद भी हमें दिया, खुदा तूने हमें इंसान भी बनाया, खुदा तूने हमें सेहत भी अता फरमाई, खुदा तूने हमें शऊर भी अता फरमाया। और ना सिर्फ यहाँ पे खत्म हो गया, शऊर तो खुदा ने दिया था, दुनिया में बहुत सारे बाशऊर मौजूद हैं, बहुत सारे इंसान मौजूद हैं, सेहतमंद अफराद मौजूद हैं, साहिब वजूद मौजूद हैं, लेकिन खुदा ने उनको अपनी मार्फत अता नहीं की। हमें खुदा ने कलमा गो बनाया, खुदा की मार्फत बनाया, खुदा का कलमा करने पढ़ने वाला बनाया, खुदा का इबादत गुजार बनाया, खुदा को सजदा करने वाला बनाया। इसी दुनिया में ना जाने कितने इंसान हैं जो इंसान भी हैं, बाशऊर भी हैं, सेहतमंद भी हैं, लेकिन आज तक उन्होंने खुदा को एक सजदा नहीं किया, एक मर्तबा खुदा की नेमत पे शुक्र नहीं किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये खुदा का शुक्र नहीं है। हम अगर गौर करें तो खुदा के शुक्र बढ़ता जाता है। खुदा ने यानी हमें तौहीद परस्त बनाया, हमें मुशरिक नहीं बनाया, हमें दहरिया नहीं बनाया, हमें एथिस्ट नहीं बनाया, हमें काफिर नहीं बनाया, हमें मुनाफिक नहीं बनाया, हमें खुदा ने खुदा परस्त बनाया। अल्लाह ताला की नेमतें तमाम नहीं हुई, अल्लाह ताला ने खुदा परस्त भी दुनिया में बहुत हैं। खुदा ने साहिब नबुवत बनाया, उस दीन से वाबस्ता किया जो अकीदा नबुवत रखते हैं, वरना इस दुनिया में बहुत से दीन हैं जो नबुवत का अकीदा नहीं रखते हैं, खुदा को मानते हैं, नबी को नहीं मानते। लेकिन खुदा ने हमें उनमें से रखा जो नबुवत का अकीदा रखते हैं। फिर नबुवत वालों में भी खुदा ने हमें उनके दरमियान रखा जो खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में करार दिया। खुदा ने हमें हर अंबिया की उम्मत में नहीं करार दिया। बहुत सारे अफराद हैं, जनाब मूसा को मानते हैं, जनाब इब्राहिम को मानते हैं, जनाब ईसा को मानते हैं, जनाब आदम को मानते हैं, जनाब नूह को मानते हैं, लेकिन सरताज अंबिया को ना मानते, फकरे अंबिया को नहीं मानते, फकरे बशरियत को नहीं मानते, फकरे आदम को नहीं मानते, फकरे नूह को नहीं मानते, फकरे सलमान को नहीं मानते। अल्लाह ने हमें लुत्फ ये किया, अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम की उम्मत में पैदा किया, उनका कलमा पढ़ने वाला बनाया, सरकार की नबुवत का इकरार करने वाला बनाया। लेकिन अजीजान मोहतरम, नेमत यहाँ पर भी नहीं तमाम होती है, नेमत आगे बढ़ जाती है। दुनिया में बहुत से अफराद हैं
जो खुदा परस्त भी हैं, रसूल का कलमा भी पढ़ते हैं। खुदा ने हमें मोहब्बत अली से नवाजा, खुदा ने हमें अली की मोहब्बत अता फरमाई। ये खुदा का कम शुक्र है, खुदा ने अली की मोहब्बत अदा की। क्या खुदा की नेमत तमाम हो गई? नहीं। दुनिया में बहुत से अफराद मिलेंगे जो सेहतमंद भी हैं, अकलमंद भी हैं, साहिब दीन भी हैं, साहिब नबूवत भी हैं, खुदा परस्त भी हैं, अली से मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन अली की विलायत का इकरार नहीं करते, अली को मासूम नहीं मानते, अली को हुज्जत नहीं मानते, अली को इमाम नहीं मानते। अल्लाह ने उनमें से भी हमें हुज्जत का मानने वाला बनाया, अली का इमाम मानने वाला बनाया, अली की विलायत का बनाया। जब पहुंच गई तो अल्लाह ने कहा मैं देता चला जा रहा हूं, तुम शुक्र नहीं करते। जब विलायत वो अल्लाह जिसके पास नेमतें तमाम नहीं होती, उसने तो अलैकुम नेमती सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इंसान सिर्फ हम गौर करें, वजूद दिया खुदा ने, इंसान बनाया खुदा ने, शऊर दिया खुदा ने, सेहत दी खुदा ने, ईमान दिया खुदा ने, तौहीद परस्त हमें बनाया, नबूवत के कलमा गो हमें बनाया। अली से मोहब्बत सिर्फ करने वाले बहुत अफराद हैं, अली से मोहब्बत वाला भी बनाया। न सिर्फ मोहब्बत, अली को वलीउल्लाह कहने वाला बनाया। अली की विलायत ने उस घराने में पैदा किया जहां पर अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया अब तो मेरी नेमतें तमाम हो गई, हमने वो दे दिया। अगर इस नेमत को तुमने रख लिया तो समझो सारी नेमतों का शुक्राना हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये आज जो हम जमा हैं इसी नेमत विलायत की बिना पर। दुनिया में बहुत से साहिबान अक्ल हैं, बहुत सारे साहिबान उसूल हैं, बहुत सारे साहिबान नबूवत हैं, बहुत सारे साहिबान तौहीद हैं, बहुत सारे अफराद जो हैं सेहतमंद हैं, बहुत सारे अफराद इंसान भी हैं, बहुत सारे अफराद मुसलमान भी हैं, लेकिन वो फर्श आज नहीं बिछा है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें विलायत अता की है। और होता भी अज़ीज़ान मोहतरमीन है कि जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू होता है, जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलने वाला होता है, तो यहाँ से शुबह आता है, वहां से एतराज आता है, यहाँ से सवाल उठता है, यहाँ से फतवा चलता है, यहाँ से तकरीर होती है कि अब इनके रोने के दिन आ गए, इनके पीटने के दिन आ गए, इनके रोने रुलाने के दिन आ गए। मैं सवाल ये करता हूँ, हमारे रोने रुलाने से आपको क्या होता है? ये अजीब सी बात है। रोते हम हैं, आंखों में आपके आंसू आते हैं, मातम हम करते हैं, सीने में आपके दर्द नजर आता है। वजह क्या अज़ीज़ान मोहतरम? किस बात पर एतराज करते हैं? हम हुसैन का मातम करते हैं, हम हुसैन पर गिरिया करते हैं। मैं यहाँ पे एक जवाब दूंगा, अजीज़ान मोहतरम एतराज करने वालों को एतराज करने दें, इसलिए कि हम वो कौम हैं जो जनाबे आदम की सुन्नत पे अमल करते हैं, जनाबे नूह की सुन्नत पे अमल करते हैं, जनाबे इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करते हैं, जनाबे इस्माइल की सुन्नत पे अमल करते हैं, जनाबे मूसा की सुन्नत पे अमल करते हैं, जनाबे ईसा की सुन्नत पे अमल करते हैं। खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नबी नहीं गुजरा मगर हुसैन पे गिरिया ना किया हो। यानी हुसैन पर गिरिया करना सुन्नत अंबिया की अलामत में से है। हम सुन्नत अंबिया को बजा लाते हैं, हम सुन्नत अंबिया पे अमल करते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि हुसैन पर गिरिया किया जाए, हमें फख्र है। और मैं यहाँ पे कहता जाऊं अज़ीज़ान मोहतरम, हम तो साल भर इंतजार ये करते हैं, तमन्ना ये करते हैं, ऐ खुदा मुहर्रम का चांद तुलू कर दे, फिर से फर्शे अज़ा बिछाएंगे, फिर से हुसैन पे गिरिया करेंगे, फिर से हुसैन का मातम करेंगे, फिर से हुसैन की अज़ादारी करेंगे। हम तो जीते अज़ादारी के लिए हैं, हम तो इंतजारी अज़ादारी करते हैं। हमारी तो तमन्ना ये होती है एक और जाए, चंद आंसू और रो लेंगे। क्यों अज़ीज़ान मोहतरम? दलील ये है कि हमारा इस फर्श अज़ा का बिछाना हमारे ईमान की अलामत है, हमारे ईमान की अलामत है। इस फर्श अज़ा का बिछाना हमारी शराफत पे दलालत है, फर्श अज़ा का बिछाना हमारी हयात की ज़मानत है। ये फर्श अज़ा, अगर ये फर्श अज़ा ना हो, इसके मायने कोई हयात की जमानत नहीं है। अगर फर्श अज़ा ना हो, ईमान पे कोई दलील नहीं है। ये ईमान की भी दलील है, ये शराफत की भी अलामत है। ये इमाम हुसैन की फर्श अज़ा वो है। और एक जुमला कह दूं, फर्श अज़ा बिछाते इसलिए हैं ताकि ये साबित कर सके हमारे
हमारी तहारत पाई जाती है। हम तहारत का सबूत देते हैं आले रसूल से मोहब्बत के। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लिहाजा इन एतराज से नहीं घबराना। अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुसैन पे गिरिया करना अंबिया की सुन्नत है। किसी पर भी रोना जो सुन्नत नहीं है, लेकिन हुसैन पर गिरिया करना सुन्नत है। लिहाजा जिस आयत की अज़ीज़ान व तिलावत का शर्फ हासिल किया, क्योंकि इतराज यही रहता है। इस आयत में खुदा बंदे मुताल क्या इरशाद फरमा रहा है, अपने नबी से कह रहे हैं, इनसे कहें वो याद करें, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, यानी उस जमाने के खुदा बंदे मुताल जो है उस जमाने की बात कर रहा है कि अगर मैं आपसे दावे से ये बात कह रहा हूं, दावे से, तारीख इंसानियत का सबसे पुराना वाकया जो है उसे खिलकत जनाब आदम कहा जाता है। कुरान उस वाक़े को नकल कर रहा है और बारहा कुरान मजीद ने जनाब आदम का तस्करा किया है। तकरीबन 6 सूरे हैं जिनके अंदर सूरह आराफ में तस्करा है, सूरह बकरा में तस्करा है, सूरह तहा में तस्करा है, सूरह साद में तस्करा है, सूरह इसरा में तस्करा है। खुदा बंदे में तकरीबन 6 सूरे हैं जिन पर खुदा बंदे मुताल ने सूरह हिज्र पर जो है तस्करा है। ये वो सूरे जिन पे जनाब आदम की खिलकत का तस्करा हुआ है और मुताद्दिद आवाज से जो है जिक्र किया गया जनाब आदम का। ये कौन सा वाकया है? ये वाकया जो तारीख इंसानियत का सबसे कदीम वाकया, इससे ज्यादा कदीम वाकया नहीं मिलता। कुरान ने इसको बार बार दोहराया है। लिहाजा सवाल किया जाता है कि क्यों हर साल मुहर्रम होता है, क्यों हर साल मसाइब होते हैं, क्यों हर साल तस्करा होता है, क्यों हर साल होता है? तो सीधी सी बात है ज़िराने मोहतरम, कुरान मजीद की ये सुन्नत है। कुरान ने जो हजारों साल पुराना हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को, तो आज अगर आज चांद जो हुआ है इसको मिलाया जाए तो 1382 साल हुए हैं, 1382 ईयर्स हुए हैं। सिर्फ इतने साल गुजरे शहादत इमाम हुसैन को, जनाबे आदम के वाक़े को हजारों साल गुजर चुके। लेकिन कुरान मजीद में बार बार तस्करा करके खुदा बताना यह चाह रहा है, हमेशा हक का इकरार करना चाहिए, बातिल का बातिल कहना चाहिए। और फर्श अज़ा का मकसद जो है वो यही है कि इंसान हक का इकरार करे, बातिल का इनकार करे। अल्लाह ताला जो है आप देख लें, जो शख्स आदमी होगा, जो शख्स इंसान होगा, उसे कभी भी किसी भी तौर पर तस्करे आदम में परेशानी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, बल्कि वो फख्र करेगा। हमारे बाबा का जिक्र हो रहा है, आदम का तस्करा आएगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो वो फख्र करेगा। लेकिन मुश्किल किसको होगी, मुसीबत किस पर आएगी? मुसीबत उस पर आएगी जो इब्लीस या उसकी औलाद में से होगा। क्यों आएगी उसको? उसको इसलिए आएगी, उसको पता है कि आदम का तस्करे के मायने के सजदे का तस्करा आएगा, सजदे के तस्करे के मायने हैं फिर इनकार का तस्करा आएगा, इनकार के मायने हैं फिर मेरे हमारे जो जज हैं उनके निकल जाने का तस्करा आएगा। लिहाजा इब्लीस की औलाद कभी भी जनाब आदम के तस्करे को पसंद नहीं करेगी, उसको ये बात का पता है। लेकिन हकीकत में क्या हजरत आदम के जिक्र से कोई मसला है? हजरत आदम के जिक्र से कोई मसला नहीं है। कोई भी मसला हजरत आदम के जिक्र में नहीं है। मसला ये हजरत आदम का तस्करा जो है इब्लीस की इब्लीसियत को बेनकाब करता है। बस इसी तरह से अज़ीज़ान मोहतरम जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम है। दुनिया में किसी को भी जिक्र हुसैन से, फर्शे अज़ा से, मातम से, अज़ादारी से डायरेक्ट कोई एतराज नहीं है। हुसैन पर क्या एतराज? हुसैन पर कौन एतराज करेगा? जिक्र हुसैन पे एतराज नहीं है। लेकिन जिक्र हुसैन क्योंकि यजीदियत को बेनकाब करता है, तो जो यजीद की औलादे हैं उनको खौफ ये होता है ये जितना हुसैन हुसैन करेंगे उतना यजीद की बेनकाब। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ादारी सैयद शुहदा वो है जो यजीदियत को बेनकाब करती है, यजीदियत को बुरा साबित करती है, यजीदियत को बातिल साबित करती है। और इसमें शिया सुन्नी का फर्क नहीं है। इमाम हुसैन शियों की इजारादारी नहीं है। अहले सुन्नत को अब तो टीवी आ गए, चैनल्स आ गए, सोशल मीडिया आया, देखिए बहुत सारे अहले सुन्नत हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते हैं, तस्करे शहादत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, इस दिन अय्याम को गम मनाने को भी कहते हैं। हाँ, उनका तरीका और है, वो अपने अंदाज से बनाते हैं। लेकिन ये जवाब उनको दिया जा रहा है जो नासबी फिक्र हैं,
जिनको तस्करे हुसैन पसंद नहीं है। अजीजान मोहतरम, जब तक के इंसान के अंदर इंसानियत होगी उस वक्त तक उसे आदम का तस्करा पसंद आएगा। जिस दिन इंसान में इब्लीसियत आ जाएगी उस दिन तस्करा आदम पसंद नहीं आ सकता। इसी तरह जब तक हुसैन इंसान के अंदर हुसैनी खून होगा उस वक्त हुसैनियत से लुत्फ आएगा। जिस दिन यजीदियत आ जाएगी जिक्र हुसैन में मजान फलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। अज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक की अलामत है, हक की अलामत है। जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया इस पे गौर करें। कल इनके नुकात पे जो है गुफ्तगू करते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। खुदा बंदे मुताल कह रहा है कि हम इन्नी जाइलुम फिल अर्द खलीफा, याद करो कि हम जमीन पर खलीफा बनाने वाले हैं। इस बात का तस्करा करो। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो खुदा बंदे मुताल जो है यहाँ पे मुतकल्लिम है, बात करने वाला है। और सामीन कौन है? मलाइका हैं अजमाइन, सारे के सारे मलाइका। जो सजदे का हुक्म किसको हुआ था? बाज मलाइका को हुआ था, सबको हुआ था, सबको हुआ था। तो ये खिताब जो खुदा बंदे मुताल कर रहा है ये मुतकल्लिम खुदा की जात है और सामीन कौन है? मलाइका है। जिक्र किसका किया जा रहा है? एक वली खुदा। तो अज़ीज़ान बताइए, यहाँ पे मैं एक सवाल करूंगा ताकि इससे आइंदा बात गुफ्तगू कर सकें कि अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी नेमात देकर भेजा, इन नेमात के बाद अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है सख्खरा लकुम। अल्लाह कह रही कायनात तो हमने तुम्हारे लिए खल्क की है, ये सूरज तुम्हारे लिए खल्क किया है, ये चांद तुम्हारे लिए खल्क किया है, ये जमीन और आसमान तुम्हारे लिए बनाए हैं। सख्खरा लकुम, खुदा कहता है ये तस्खीर की हमने तुम्हारे लिए। ए इंसान, यानी किसके लिए बना ये सब कुछ? ये इंसान के लिए बना है। लेकिन कुरान क्या बात आता है? कुरान एक और चीज भी बयान करता है, उसका जिक्र कम होता है। कुरान कहता है अल मुदब्बिरात अमरा। यहां तक सख्खरा लकुम से तो ये बात वाज़ेह हो गई कि खुदा बंदे मुताल ने ये जमीन और आसमान, ये चांद और सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं, ये गैलेक्सी, जो कुछ कायनात में पाया जाता है खुदा बंदे मुताल कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए बनाया, इंसान तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन इस कायनात को कोई तदबीर भी करता है कि नहीं करता? मैनेजमेंट है इस कायनात की कि नहीं? तदबीर करना, मैनेज करना। इस कायनात का मैनेज करने वाले कौन लोग हैं? कौन से वो अफराद हैं जो इस कायनात को मैनेज करते हैं? कुरान कह रहा है अल मुदब्बिरात अमरा। मलाइका जो हैं वो हमारी तदबीर करते हैं। मैनेजमेंट में मलाइकाएं तमाम, हवा चलाने का मलक अलग है, बारिश बरसाने का मलक अलग है, सूरज चमकाने वाला मलक अलग है, हयात देने वाला मलक अलग है, मौत देने वाला मलक अलग है, सेहत देने वाला मलक अलग है। अल्लाह ने हर काम जो है मलाइका के जरिए किया है। मलाइका को खुदा बंदे मुताल ने बयान किया है। तो इसके मायने यहाँ पे आगा जवादी आमली नुक्ता बयान फरमाते हैं इंसान वो है कि जिसके लिए खुदा ने तमाम कायनात को बनाया और कायनात को तदबीर के लिए खुदा ने मलाइका को बनाया। तो कहा नतीजा क्या निकला? इसके मायने नतीजा ये निकला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलाइका को भी इंसान के लिए बनाया और अल्लाह ने कायनात को भी इंसान के लिए बनाया। क्योंकि मलाइका की तख्लीक की वजह ये मुदब्बिरात हैं, वो खुदा के उमूर को चलाने वाले हैं, लिहाजा खुदा ने मलाइका को बनाया। फिर आगे जवादी आमनी फरमाते हैं खुदा बंदे मुताल इन मादी नेमतों को तो दे सकता था, गैर मासूम के लिए मासूम नेमतें नहीं खल्क करता। खुदा बंदे मुताल ने मलाइका को खल्क किया है। का ये हर कसो नाकस के लिए खल्क नहीं हुआ है, हर कस वो उन हस्तियों के लिए खल्क हुआ है जिन्हें इंसाने कामिल कहा जाता है। वो इंसाने कामिल हैं जिनकी वजह से खुदा ने कायनात को सजाया भी है, मलाइका को खिदमत गुजार बनाया है। मलाइका उन्हीं के लिए खल्क हुए हैं का उसे इंसान कामिल कहा जाता है, उसे वली खुदा कहा जाता है, उसे खलीफा खुदा कहा जाता है, उसे नुमाइंदे खुदा कहा जाता है। वो मासूम होता है। फरमाते कि तमाम इंसानियों के लिए नहीं है, ये उस इंसान के लिए बनाया गया है या उन इंसानों के लिए बनाया गया है जो इंसान कामिल होते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मोमिनीन आपसे गुजारिश है कि जैसे आप जानते हैं इदारा-ए-जाफरिया हमेशा आप लोग डोनेशन देते आए हैं और इदारा-ए-जाफरिया जो आपके डोनेशन से चलता है और अभी जो काम हो रहे हैं इदारे में वो सब आप ही के डोनेशन से हो रहे हैं। और तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी डोनेशन दे सकते हैं आप डोनेशन दें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन से ही बाकी है आज उलुल अज़्म पैगंबरों की अजमत। हुसैन से ही बाकी है आज उलुल अज़्म पैगंबरों की अजमत। अरे हुसैन से ही तो है दुनिया में चारों सिमत इस्लाम की बकाए अजमत। बेशक क्यों ना हो, अरे हुसैन ने ही तो कुर्बान किए इस्लाम पे अपने अजमतों वालों की अजमत। क्यों ना हो, अरे हुसैन ने ही तो कुर्बान किए इस्लाम पे अपने अजमतों वालों की अजमत। अरे ता कयामत तक, अरे ता कयामत तक कम न होने देगा अल्लाह हुसैन मजलूम की अजमत। अजमत हुसैन इब्न अली बावद बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आगे जवादी फरमाते कहती है हर इंसान के लिए खुदा ने बनाया, हमें इंसान बनाया खुदावंद मुताल ने। ये जो खुदा ने जो कुछ भी बनाया है ये असल में यानी हम भी उसी के लिए खल्क हुए हैं। क्या वो इंसान कामिल है, वो खुदा के अब्द हैं जो खुदावंद मुताल सामने मुतवाज़े होते हैं, जो इंसान कमाल पर पहुंच जाते हैं, जो हुज्जत खुदा होते हैं, जो मासूम होते हैं, खुदावंद मुताल ने उनके लिए बनाया है। ये वो कायनात सजाई जो गई है उनके लिए सजाई गई है। अब देखें जो मैं नुक्ता बयान कर रहा था उसमें आप देखें खुदावंद मुताल अपने वली औलिया का तस्करा किस अंदाज से करिए। पहला जलसा हो रहा है, ये पहली गुफ्तगू हो रही है खुदावंद जहां खिताब करने वाला खुदा की जात है और जिनसे खिताब किया जा रहा है वो मलाइका हैं और जिस चीज के लिए खिताब किया जा रहा है वो औलिया-ए इलाही है। खुदा खलीफतुल्लाह की बात कर रहा है कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। यहाँ पे नुक्ता जो पोशीदा है वज़ान मोहतरम, खुदावंद मुताल लफ्ज़ जब इन्नी इस्तेमाल करता है, खुदा ने यहाँ ये नहीं कहा हमने बनाया, खुदा कह रहा है इन्नी मैंने बनाया। कुरान में जब खुदा मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वहां पर वो अजमत वाले नुकात के अलावा वहां पर ये होते नहीं खुदा किसी वास्ते का तस्करा नहीं चाह रहा, कोई वास्ता बीच में नहीं पाया जाता, बगैर वास्ते की गुफ्तगू कर रहा है। हाँ जहां पे वास्ते पाए जाते हैं तो वहां पर खुदा ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को बीच में मलाइका वास्ते थे, लोहे महफूज वास्ता थी, लिहाजा खुदावंद मुताल ने जहाँ वास्ते होते हैं वहां पे इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है या अजमत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। लेकिन जब अपनी तौहीद का ऐलान कर रहा है तो क्या कह रहे इन्नी अना अल्लाह, वहां पे नाहनो नहीं कह रहा है, इन्ना नहीं कह रहा, का मैं अल्लाह हूं, क्योंकि किसी को शुबा ना हो। लिहाजा खुदा वहां पे इन्नी इस्तेमाल करता है। मैं का लफ्ज़ खुदा जब इस्तेमाल करता है जहां पर खुदा ये बयान करना चाहता है कि कोई वास्ता नहीं पाया जाता मेरे और इनके दरमियान, यानी खुदा बयान ये कर रहा है कि जब मैं किसी को नुमाइंदा बनाता हूं तो उसमें मेरे अलावा कोई दखालत नहीं रखता। ये नुमाइंदा बनाना, ये खलीफा बनाना, कौन खलीफा बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये मलाइका डिसाइड नहीं करेंगे, ये अंबिया भी बयान नहीं करेंगे। ये फकत हक हासिल है इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं खलीफा बनाने, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मैं खलीफा बनाने वाला हूं। इसके माने है कि खिलाफत का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। देखिए खिलाफत जो है दो अल्फाज कुरान में इस्तेमाल होते हैं, एक इमामत का लफ्ज़, खिलाफत का इमाम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और खिलाफत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। खलीफा उसको कहा जाता है जो किसी का नुमाइंदा हो, यानी उससे पहले कोई हो उसका नुमाइंदा वो हो, उसे खलीफा कहा जाता है। और इमाम उसे कहा जाता है जो किसी का पेशवा हो, यानी मुझसे कोई आगे है वो उसका पेशवा है। यानी इमाम और खलीफा में ये फर्क है, खलीफा का ये बैक की तरफ देखा जाता है और इमाम में आगे देखा जाता है। इमाम किसी को कहते हैं जो किसी का पेशवा होता है, खलीफा उसे कहते हैं जो किसी की नुमाइंदगी करता है। एन ये बात मुमकिन है और ऐसा होता भी है कि एक ही शख्स हो जो एक जहज से खलीफा भी हो और दूसरी जहज से इमाम भी हो। खुदावंद मुताल जो ऐसे करता है और ऐसा होता है कि अवामुन नास के लिए वो इमाम हो
और खुदा की जहद से, रसूल की जहद से वो खलीफा हो। मैं मिसाल दे दूं बात की वजाहत के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, मैं मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल देता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फर्जंदे अली भी हैं और बाबे अली भी हैं, दोनों तरफ से अली हैं। यानी कि उनकी निस्बत जो है बेटे की देखी जाए तो वो इमाम अली के बेटे हैं, और अगर उनके बाप की निस्बत दे जाए तो इमाम सज्जाद के वो बाबा हैं, एक शख्सियत हैं। उनको अगर इमाम अली की निस्बत देखेंगे तो औलाद कहलाएंगे, इमाम सज्जाद की निस्बत देखेंगे तो वो बाबा कहलाएंगे। बिल्कुल खलीफा इमाम इसी अंदाज से होता है। अगर गुज़श्ता की निस्बत देखा जाए तो वो खलीफा होता है, और अगर जिनका पेशवा बनाया गया है उसे इमाम कहते हैं। इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं पाया जाता, ओहदे में, किस कसरत में, इख्तियार में कोई फर्क नहीं, इस्मत में, मकाम में, मंजिलत में कोई फर्क नहीं। आप किस हवाले से कह रहे हैं? तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये खुदा जो कह रहा है मैं खलीफा बना रहा हूं, ये खलीफा बना किस कर रहा है? आया मलाइका का खलीफा जनाब आदम को बना रहा है? क्योंकि खुदा ने कुरान में तस्करा नहीं किया, खुदा ने सिर्फ इतना कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं खलीफा बना रहा हूँ। किसको खलीफा बना जिसको रहा हूँ, किसका खलीफा बना रहा हूँ, ये बयान नहीं किया खुदावंद मुताल ने। लेकिन ये बात तय है, कुरान ने आगे जो कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूँ, मलाइका अहले जमीन नहीं है। तो मलाइका की खिलाफत की बात नहीं हो रही, यानी मलाइका के नुमाइंदा खुदा बनाकर नहीं भेज रहा है, क्योंकि मलाइका जो है जमीन पर रहने वाली मखलूक नहीं है, वो आसमानी मखलूक है, आसमान पर रहने वाली मखलूक है। लिहाजा खुदावंद मुताल जो है, कोई इंसान इस दुनिया में बसता नहीं है कि जिस इंसान के वो खलीफा हो। यहाँ पर जो तयशुदा बात है, खुदा जो खलीफा बना रहे जनाब आदम को, वो अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहा है, अपनी नुमाइंदगी देकर भेज रहा है। सवाल जो यहाँ पे ये पैदा होता है, ये खुदा के किस माना में नुमाइंदे हैं, किस चीज के नुमाइंदे हैं, किस चीज की नुमाइंदगी करने आए हैं? इसलिए देखना ये पड़ेगा। अगर हम ये देखते हैं कि जो है भी हकीकत भी यही है कि खुदा ने जनाब आदम को अपनी हिदायत का नुमाइंदा बनाया, यानी हादी बनाकर भेजा है। अजीजान मोहतरम, इस नुक्ते बयान करूं, इस आयत को जो पढ़ने का मकसद है और इस आयत को जो सरनामा कलाम बनाया है, उससे जिस मौजू पे गुफ्तगू होगी आइंदा आने वाले दिनों में, वो मौजू ये है कि निज़ाम हिदायत और इंसान आईने विलायत के अंदर इंसान की इंसानियत को आइम्मा की तजल्ली में देखना है, और इंसान अल्लाह की हिदायत जो है वो निज़ाम विलायत में देखना है। कि ये देखना है कि इंसान के मकाम मेराज क्या है और अल्लाह का निज़ाम हिदायत क्या है। अल्लाह ताला ये कह रहा है ये मेरा खलीफा है, यानी अल्लाह अपना नुमाइंदा हिदायत बना के भेज रहा है। लेकिन हिदायत, मैं एक मिसाल दूं बात की वजाहत के लिए, कि अगर एक गांव हो, एक देहात हो, या गांव देहात भी छोड़ दीजिए, एक मौलाना साहब थे, हिदायत करना चाहते हैं, तबलीग करना चाहते हैं, वो कहीं तबलीग के लिए जा रहे हैं जंगल की तरफ, तो आप सवाल करेंगे मौलाना कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहेंगे मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ। तो कहाँ तबलीग के लिए जा रहे हैं? जहां पर कोई जो तबलीग किस पे करेंगे? जंगल में तो कोई होता नहीं इंसान, वहां तो कोई इंसान ही नहीं रहता, तो कहाँ जाके किसकी तबलीग करेंगे? या एक गांव देहात, वहां पर अभी कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर स्कूल क्या खोला जाए, फिर कॉलेज क्या, दरसगाह कैसे बनाई जाए? कोई बच्चा ही नहीं वहां पर, तो वहां पे मौलिम कैसे भेजा जाए? मौलिम वहां भेजा जाता है जहां पर कोई तालीम हासिल करने वाले, मुबल्लिग वहां भेजा जाता है जहां पर कोई हिदायत लेने वाले हैं। खुदा बंदे मुताल अपनी हिदायत का नुमाइंदा बनाकर भेज रहा है। खुदा सिर्फ बयान इतना करना चाहता है कि ये तुम्हारा इंसानी निजाम है कि पहले पढ़ने वाले पैदा हो जाएं, फिर तुम मौलिम का इंतजाम करते हो, पहले हिदायत वाले पैदा हो जाएं, फिर तुम हादी का एहतमाम करते हो। खुदा बंदे मुताल फरमा रहा है ये मेरा नुमाइंदा है। जब कुछ ना था तब भी मैं खुदा था, जब कुछ ना होगा तब भी मैं खुदा हूंगा। किसी के होने ना होने से मेरी खुदाई पे असर नहीं पड़ता। खुदा कह रहे ये मेरा नुमाइंदा है, ये मेरा हादी है। ये तुम्हारा निजाम ऐसा है कि पहले हिदायत लेने वाले अफराद हों, फिर हादी भेजा जाएगा। लिहाजा खुदा बताना चाहता है मेरा निजाम हिदायत ये है कि हिदायत वाला कोई हो या ना हो,
हम जमीन को बगैर हादी के नहीं छोड़ते। हम पहला फर्द जो भेजेंगे वो हिदायत व सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा खुदा दो निजामों का आज आगाज कर रहा है। आसमरात इस आयत में खुदा आगाज कर रहा है, एक निजाम हिदायत का और एक निजाम इंसानियत का। यानी खुदा बंदे मुताल एक खानदानी निजाम को भी आज कायम कर रहा है। जनाब आदम की दो जहतें हैं, नबी की जहत से वो हुज्जत खुदा भी हैं और नुमाइंदे खुदा भी हैं, खलीफा खुदा भी हैं, लेकिन शौहर की हैसियत से एक जौज भी है। यानी जनाब आदम वो हैं जिनसे दोनों निजाम चले हैं, खुदा का निजाम हिदायत भी चला है और खुदा का खानदानी निजाम भी चला है। और आज जो दुश्मन अजीजान मोहतरम, आज आप इंटरनेट की दुनिया में जाएं और जाकर देख लीजिए, खुदा के इन दोनों निजामों का दुश्मन आज दुनिया जो हो चुकी है। दुनिया के जितने शयातीन हैं, दुनिया के जितने शयातीन हरबे कर रहे हैं, वो दो ही निजामों पे हमला कर रहे हैं। एक निजाम हिदायत पर, यानी अल्लाह के बनाए हुए अंबिया के दीन पर, अल्लाह के भेजे हुए हुज्जत खुदा पर, अल्लाह की भेजी हुई किताब पर, यानी दीन खुदा के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। और दूसरा क्या, फैमिली सिस्टम पर। फैमिली सिस्टम इस वक्त इस कदर नाकारा कर दिया गया, इतने हमलात किए जा रहे हैं हर जहत से। ये शैतानी निजाम, ये शैतानी निजाम हमेशा इलाही निजाम के मुकाबले में खड़ा होता है। लिहाजा जाने मोहतरम हमें देखना ये होगा कि हम खुदा के हिदायती निजाम में किस तरह के इंसान बन सकते हैं। यही मौजू रहेगा। हम इस निजाम विलायत के अंदर किस तरह से अपने आप को अहले बैत की विलायत से आरास्ता कर सकते हैं, उनकी तालीमात से आरास्ता कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने इन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है, इनको इताअत गुजार बना, इनके लिए हमें इताअत गुजार बनाया है, यानी हम इनकी इताअत करें। लिहाजा कुरान में खुदा बंदे मुताल फरमाता है, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, तुम्हारा काम ये है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबान अमर की इताअत करो। लिहाजा इंसान का इम्तियाज ये है कि वो हुज्जत खुदा की भी इताअत करे, अंबिया की भी इताअत करे और खुदा बंदे मुताल की भी इताअत करे। और दुनिया क्या चाहती है? दुनिया हमें इमामत से भी दूर करना चाहती है, दुनिया नबूवत से भी दूर करना चाहती है, दुनिया खुदा से भी दूर करना चाहती है। और रह सहकर जो ये फैमिली सिस्टम बचा है, इंसान की इंसानियत के अलावा, जंगलों में कोई फैमिली सिस्टम तो नहीं होता, किसी जगह देखा जंगलों में फैमिली सिस्टम होता हो, लेकिन वहां तो होता नहीं है। जहां इंसानों में होता है उसको भी पामाल किया जा रहा है, उस पर भी हमले किए जा रहे हैं। आज तो इतना ज्यादा, न सिर्फ वेस्टर्न दुनिया की बात नहीं कर रहे जाने मोहतरम, आज तो इस्लामिक दुनिया में भी, न सिर्फ इस्लामिक दुनिया में भी, मोमिनीन के दरमियान भी, यानी साहिबान ईमान, शियों के घर में, अली वालों के घर में, सिद्दीका वालों के घर में भी फैमिली मसाइल उरूज पर पहुंच चुके हैं। और वाकई हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं। किस, जब तक कि हम अज़ान मोहतरम तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से आरास्ता न करें, अपने आप को तालीमात अहले बैत से आरास्ता ना करें। उसका एक पॉइंट बयान करके आज की बात को खत्म कर दूं। अज़ान मोहतरम, असल मसला क्या है अज़ान मोहतरम, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो सब्र और इस्तिकामत खत्म हो चुका है, बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। औलाद को माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं, माँ बाप को औलाद की बात बर्दाश्त नहीं, बीवी को शौहर की बात बर्दाश्त नहीं, शौहर को बीवी की बात बर्दाश्त नहीं, भाई को भाई की बात बर्दाश्त नहीं, बहन को भाई की बात बर्दाश्त नहीं, भाई को बहन की बात बर्दाश्त नहीं, बहन को बहन की बात बर्दाश्त नहीं। ये रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं? इसलिए सब्र जो है हमारे हाथों से निकल गया है, सब्र को छोड़ दिया है, बर्दाश्त को छोड़ दिया है। अगर बर्दाश्त हो जाए ज़ीरान मोहतरम, अगर हम बर्दाश्त, सिर्फ बर्दाश्त हुआ है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, खुदा कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अजीज़ान मोहतरम, तजर्बा करके देखने, इंसान कभी अगर एक लहजे का सब्र कर लेता है, उसे कई सालों की मुश्किलों से निजात मिल जाती है। और एक लहजे अगर अपने गुस्से पे सब्र नहीं करता, अपनी जिंदगी को ताराश कर देता है, ताराज कर देता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। यकीनन निज़ाने मोहतरम हमें सोचना भी पड़ेगा और इसकी तक तवज्जो देना पड़ेगी कि जब हम अहले विलायत हैं, जैसे मैंने कहा शुक्र है खुदा का, तो फिर हम दूसरों की तरह क्यों हैं?
दूसरे जिस तरह लड़ते हैं भी वैसे कैसे लड़ जाते हैं, दूसरों में जैसे इख्तिलाफ होते हैं वैसे क्यों होते हैं, फर्क क्यों नहीं है? फिर फर्क जो होना है जाने मोहतरम, जब तक अमल नहीं होगा, अमल की दुनिया में आएंगे तो जाने मोहतरम ये फर्क होगा। जहां तक मैं नज़रियात की बात, ये हकीकत है। शुक्र करें अपने आप को, जितना भी शुक्र किया जाए। अल्लाह ताला ने इस खानदान का वफादार बनाया, इस खानदान से हमें वाबस्ता किया। मैं अमल की दुनिया में अगर आपको बताऊं, जहां खुदा ने हमें वजूद बख्शा है, जहां खुदा ने हमें इंसान बनाया है, जहां खुदा ने हमें सेहत दी है, जहां खुदा ने हमें शऊर दिया है, जहां हमें खुदा परस्त बनाया है, जहां खुदा ने नबुवत वाला बनाया है, जहां खुदा ने अली की मोहब्बत दी है, जहां खुदा बंदे मुताल ने हमें अलियन वलीउल्लाह कहने वाला बनाया है। शुक्र है उस खुदा बंदे मुताल का। आज दुनिया में बहुत सारे अफराद जाने मोहतरम जो विलायत का ऐलान भी करते हैं, अलियन वलीउल्लाह भी कहते हैं, अली को इमाम भी मानते हैं, हुज्जत खुदा भी मानते हैं, लेकिन कुछ तो है ना कि वो फिर भी फर्शे अज़ा तक नहीं आ पाते। 8 मुहर्रम का इंतजार करते हैं, 7 मुहर्रम का इंतजार करते हैं, 9 मुहर्रम का इंतजार करते हैं, 10 मुहर्रम का इंतजार करते हैं। वो उस दिन आते हैं, ये नहीं विलायत में शक करते हैं। नहीं अजीजान मोहतरम, कायनात खुदा ने बनाई ऐसी है, ये कायनात पूरी कॉज एंड इफेक्ट से बनी हुई है। हर चीज का एक कॉज होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, हर इफेक्ट के पीछे कॉज होता है। बगैर कॉज के कोई दुनिया नहीं है। अब मैं आपसे सवाल ये करूंगा, अल्लाह ने आपको इंसान भी बनाया, बाशऊर भी बनाया, सेहतमंद भी बनाया, बाईमान भी बनाया, खुदा परस्त भी बनाया, अहले विला भी बनाया, मुहिब्बे अली भी बनाया, लेकिन औरों की तरह आप आज फर्श अज़ा पे क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि कोई काम आपने किया है जो बारगाह रिसालत में कबूल हो गया, जो बारगाह तहारत में कबूल हो गया, जो बारगाह हुसैनी में कबूल हुआ, कि उसकी बिना पर अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई, कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आप उठ के, आज चांद रात हुई है, आप फर्शे अज़ा तक आकर जनाबे सैयदा से तजदीदे बैत कर रहे हैं। ऐ सैयदा, हमारा इमाम 2 मुहर्रम को आएगा। हम वो इस्तकबाली अफराद हैं कि हम 2 दिन पहले अपने मौला के लिए फर्शे अज़ा बिछा के बैठ गए। इमाम 2 दिन बाद आएगा, लेकिन भी आपके खानदान के वफादार हैं। हमें देखिए, हमने ये फर्शे अज़ा बिछा लिया, आप कल कह रही थी रोने वाला कौन होगा? आइए बीबी, आपके बच्चे का रोने का इंतजाम हो गया। दुनिया भर में आपके बच्चों के अलम लहरा दिए गए, सियाह परचम बुलंद कर दिए गए, सियाह पोशी कर दी गई। हाँ, जब ये बच्चा अज़ीज़ान मोहतरम पैदा हुआ, अभी जनाब सैयदा मुस्कुरा रही थी। आगोश रिसालत में ये बच्चा आता है, जैसे आगोश रिसालत पे आया, पैगंबर इस्लाम ने बोसा दिया। बोसा दे नहीं, पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हो गए, पैगंबर इस्लाम रोने लगे। सैयदा ने कहा, बाबा ये तो मुबारकबाद का वक्त है, आप रो क्यों रहे हैं? अजीजा ने मोहतरम, सैयदा खड़ी थी। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने कहा, भी जिब्राइल ने कहा है मेरी उम्मत इसको ज़िबा कर देगी। 3 दिन का भूखा प्यासा दश्ते बला में ज़िबा किया जाएगा। कड़ी थी, कड़ी से जमीन पे बैठ गई, फिर कड़ी हो गई। कहा, बाबा क्या मेरा बच्चा ज़िबा किया जाएगा? हाँ बेटा, इसको ज़िबा किया जाएगा। कहा, बाबा क्या उस वक्त आप होंगे? कहा, नहीं बेटा, मैं तो ना होऊंगा। कहा, बाबा क्या इनके बाबा अली होंगे? कहा, नहीं बेटा, वो भी ना होंगे। अरे मैं दुखियारी माँ होंगी। कहा, नहीं बेटा, तुम भी ना होगी। कहा, अच्छा इसका भाई हसन होगा? कहा, ना भाई हसन भी ना होगा। फातिमा के रोने में और शिद्दत आ गई। बाबा फिर मेरे बच्चे के मसाइल कौन पड़ेगा? मेरे बच्चे पर गिरिया कौन करेगा? अज़ीज़ान मोहतरम, घर जाके शुक्राने की नमाज पढ़ना। खुदा ने आपको तौफीक दी कि अभी हुसैन के आने से पहले 2 दिन पहले इस्तकबाले मुहर्रम के लिए, इस्तकबाले हुसैन के लिए फर्शे अज़ा पर आ गए। अजीजों, फर्शे अज़ा पे आप आए, फातिमा अपना रुमाल लाई है, एक एक आंख के नीचे लगाती होगी। ए मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे के रो
का मातम करेगा? कौन मातम करेगा? पैगंबर ने कहा होंगे खुदा एक कौम ऐसी होगी, हुसैन की कौम एक ऐसी होगी, इस करबला के बाद जवान तेरे जवान का मातम करेंगे, बूढ़े तेरे बूढ़ों का मातम करेंगे, खवातीन तेरी खवातीन का। ए बच्चों, ए सैयदा, तेरे हुसैन पर रोने वाले होंगे। और रसूलुल्लाह ने एक जमानत दी, कहा सैयदा आती कयामत तक हर आंसू खुश्क हो जाएगा, अश्क हुसैन न खुश्क होगा, कयामत तक तेरे बच्चे पर गिरिया होगा, कयामत तक। तो जनाब सैयदा ने दामन रसूल पकड़ कर कहा, ए बाबा जान, फिर खुदा से हक़ शफाअत दिला देना, मैं जन्नत में न जाऊंगी जब तक के अपने बच्चों के आज़ादा। अला लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन, या 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 हुसैन, मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद, मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद, मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद, मुहर्रम के तू बदली में चला जा, कि तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा चांद, मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद, मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद, मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद, मुहर्रम के तू बदली में चला जा, के कर्जा खाना का लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई, 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं शिकवा, हुसैन मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद, मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद, मुहर्रम के तू बदली
बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा के वीरान घरों में ना इसे नींद है आती अकबर की जुदाई है इसे खून रुलाती कदमों के निशान ढांप के कदमों के निशान ढांप के बैठी है सरेगा मुहर्रम के तू बदली चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में 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 चला जा के वादा जो किया बहन को सीने से लगा के मैं शादी करूंगा तो तेरे पास ही आके मैं साथ मुहर्रम को दूंगा न घबरा तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के 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 तू बदली में चला जा मिलने के लिए भाई को बेचैन भरी है कब से अली अकबर की गिलाहों में खड़ी है बिछड़ी है ये मुद्दत से इसे तू न नजर मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद 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 मुहर्रम के तू बदली में चला जा मदीने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं
करबल बसाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले वो खैमे सजा रहे हैं वादा निभाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले ये दर वो पाक दर गए जो फातिमा का घर है ये प्यारे मुस्तफा का मौला अली का घर है मक्तल में आ गए हैं कुरान सुनाने वाले मौला हुसैन मदीने वाले मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं करबल वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले करबल में आ गए करबल बसाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले इस्लाम ने पुकारा कुरान ने सदा दी यस्रब का शाहज़ादा यस्रब की शाहज़ादी निकले सफर को घर से कलमा बचाने वाले मौला मदीने वाले करबल से आ गए हैं करबल बसाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले मौला मदीने वाले मौला मदीने वाले सब लुट गई कमाई हक भरने पर छिपाई असगर ने तीर खाया तेरी मां दुहाई तीरों के साए में सजदे में जाने वाले मौला इमाम या हसन या हुसैन मौला इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन शबीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली सीने पे जो शाके पली सीने पे जो शाके पली जिसकी अबा रंग में जली जिसकी अबा रंग में जली ऊपर तमाचों के निशान मौला इमाम या हसन या हुसैन मौला इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन फातिमा
बस चंद अशआर दुआ के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़िए इंशाल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे मां सिवा गम हुसैन के। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, मिलके या मिलके या ज़हरा, है मेरी बीबी, है मेरी बीबी, तेरे दर पे इस्तिग़ासा है, तेरा ममनू मेरी शहज़ादी, ये जहां सारा है। या मिलके या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, हमें हिफ्ज़ और अमान दे दे, अपनी चादर का साहिबा दे दे, और तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी, तू जिसे चाहे तो जहां दे दे। या ज़हरा, या मिलके ज़हरा, ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, वक्त आखिर है बस मेरा बीबी, अनगिनत हैं मेरे गुनाह बीबी, मिलके वक्त आखिर है बस मेरा बीबी, अनगिनत हैं मेरे गुनाह बीबी, वास्ता तुझको तेरे बच्चों का, बख्शवाना मेरे गुनाह बीबी। या ज़हरा, मिलके या ज़हरा, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।